I welcome you all to this Education Expo 2024 on behalf of Minds in Motion Foundation. मैं इससे पहले पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं, माइंड्स इन मोशन एजुकेशन एक्सपो के बारे में आपको 1 मिनट में कुछ बताता चलूं। ये एजुकेशन एक्सपो का तीसरा साल है और हर साल हम लाखों की तादाद में यहाँ जमा होते हैं। एजुकेशन के अलग अलग मसलों को, अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स अपने स्टॉल्स लगाते हैं, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट आकर अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। यहाँ पर इस साल माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ भी है, MGM यूनिवर्सिटी है, मानू से लोग आते हैं। हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब कल बता रहे थे कि मौलाना का भी इदारा अब यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है इंशाल्लाह। तो ये एजुकेशन एक्सपो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, जहाँ पर हम एजुकेशन की सरगर्मियों को डिस्कस करते हैं। दोपहर के सेशन में यूजुअली एक पैनल डिस्कशन होता है जहाँ पर हम एक टॉपिक, उसके ऊपर उसके बैकग्राउंड और उसके सल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। शाम में पब्लिक स्पीचेस होती है जहाँ पर स्पीकर्स आकर अपने आइडियाज़ मासेस को देते हैं, जिसमें यूजुअली मदर्स होती है, जिसमें पब्लिक होती है, टीचर्स होते हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स होते हैं। सो दिस हैज़ बीन अ सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन फॉर द पास्ट 2 years. दिस इज़ द 3rd year. अब मैं टॉपिक की तरफ बढ़ना चाह रहा था। सबसे पहले सो इट इज़ माई ऑनर एंड प्रिविलेज कि मैं आप सबको यहाँ होस्ट कर रहा हूँ। आज के पैनल डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रैटेजीज टू प्रिवेंट ड्रॉप आउट्स अमॉन्ग माइनॉरिटी स्टूडेंट्स इन इंडिया। और मैं जानता हूँ आप कहीं ना कहीं वो टॉपिक से कनेक्टेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट ड्रॉप आउट, हम काफ़ी देर से यहाँ चर्चा कर रहे थे कि स्टूडेंट ड्रॉप आउट क्या होता है। स्टूडेंट ड्रॉप आउट एक्चुअली रिफर्स टू स्टूडेंट्स हु लीव स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन। Recent data from the National Statistics Office paints a concerning picture. Around 12.6% of students drop out of school in India. और ये registered numbers हैं. The situation worsens at specific stages. For example, 19.8% of students drop out of at the secondary level, जिसे हम 9th और 10th कहते हैं. 17.5% students leave during the upper primary level, जिसे हम 6th to 8th कहते हैं. While government initiatives like the Right to Education Act and the National Education Policy aim to provide education for all, the challenge remains. How do we ensure students not only access education but also remain in school to complete it? सिर्फ एडमिशन लेना या एडमिशन को मुकम्मल करना? High dropout rates have far-reaching consequences. And before we discuss with the panel the reasons and the strategies to stop that, हम इसके consequences देखते हैं। सबसे पहले, on a personal level, dropouts miss the chance to acquire basic skills necessary for personal growth and development. कहते हैं ना, meeting ends, letting ends meet, वो करना मुश्किल हो जाता है। Economically, it results in a wastage of resources, time, energy, money, efforts invested in education go unfulfilled. There are several organizations जो पैसा, एनर्जी इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, और वो अगर बच्चे ले नहीं पाए या बच्चे ड्रॉप आउट हो जाए तो वो भी वेस्ट हो जाता है। सोसाइटली इट परपिचुएट्स साइकिल ऑफ पॉवर्टी। बाप गरीब था, दादा गरीब था, बच्चा गरीब है। Inequality and exclusion, particularly for marginalized groups like minority communities. When students drop out, they lose their opportunity to contribute meaningfully to the society. Families remain trapped in poverty. Girls especially face issues such as early marriage and child labor, limiting their future prospects. और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि a lack of education also increases vulnerabilities to unemployment, crime and social issues.
This discussion is not just about numbers, it's about human potential, talents left untapped, dreams left unrealized, and opportunities lost. However, the solution lies in collective strategies that address both systematic and social barriers. Today, we are privileged to have a diverse and distinguished panel who bring with them a wealth of experience and knowledge to address this issue. Together, they will help us explore the root causes of dropouts, especially among minority students, practical and sustainable solutions to improve retention in schools, and most importantly, how we build an education system that is inclusive, engaging, and empowering for all. Together, we aim to discuss, deliberate, and drive meaningful change. Let's begin this critical conversation with the goal of ensuring that every child stays in school, thrives, and builds a brighter future for themselves and for our nation, India. Thank you so much. Jazakallahu khair. Now, before we start addressing the questions, मैं हमारी audience को आपके बारे में कुछ बताता चलूँ. वैसे जब मैं introduction बना रहा था तो मुझे काफ़ी time लग गया क्योंकि इतनी सारी बातें थी डिस्कस करने के लिए आपके बारे में. आप अपनी जगह खुद एक इंस्टीट्यूशन है माशाल्लाह, लेकिन बड़ी मुख्तसर मैं आपका इंट्रोडक्शन पेश कर रहा हूँ. It is my honor to introduce our esteemed panelist, Dr. Abdul Qadir sir, the visionary behind Shaheen's incredible journey. What began in 1989 as a small initiative in a one-room space with just 18 students has now grown into a thriving center of academic excellence, serving over 30,000 students and 700 plus teachers from KG to graduation levels, mashallah. Driven by a commitment to revitalizing Bidar's historic legacy as a renowned seat of learning, Dr. Abdul Qadir has transformed education in the region. Inspired by the absence of quality institutions for his younger sibling, he sacrificed a promising engineering career in the Gulf to establish Shaheen. With limited resources but immense faith in Allah subhanahu wa ta'ala and a bold vision, he laid the foundation for what Shaheen is today, a hub of knowledge and aspiration. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Dr. Abdul Qadir sir to this panel. To my left, I have Dr. Idris Khamisa Sahab. He is an international consultant in education and human development, renowned for his expertise in self-development, leadership, and curriculum design. Beginning his career as an English teacher, his passion led to his nomination as chairman of the English Society of South Africa and serving as head teacher of 3 schools. He has conducted workshops and seminars in over 30 countries covering topics like leadership, youth development, parenting, family dynamics, and project management. A co-author of several books, including The Art of Public Speaking and Premarital Conversations and Beyond. He also serves as an advisory member of IBERR and co-authored its school manual. Idris Khamisa sir has lectured at IPSA and delivers in-service training for corporations with a focus on soft skills, youth leadership, and staff motivation. As a parenting expert and marriage counselor, his workshops are widely regarded as transformative, mashallah. He regularly appears on national and community radio stations, and his unique ability to identify challenges and provide solutions makes his work impactful. A dynamic speaker and trainer, he inspires excellence wherever he goes. Dear audience, please welcome him with a huge round of applause. One of our panelists is my mentor, Mr. Mujtaba Farooq Sahab. He is a distinguished leader in education, welfare, and community development. He serves as the chairman of Markaz-e-Ta'limi Board and a member of the Central Advisory Council of Jamaat-e-Islami Hind, New Delhi.
He is the convener of All India Muslim Majlis-e Mushawarat in Maharashtra and executive member of the Human Welfare Foundation, New Delhi. With extensive contribution to education, Mr. Farooq sir chairs Scholars Group of Institutions in Aurangabad, Niswan College in Aligarh, and Al Irfan Residential School and HGMM D.Ed College in Khuldabad. He is also an executive member of Jamiat al-Falah, Azamgarh, and the founder secretary of the Federation of Muslim Educational Institutions, New Delhi. As a founder director of Asia Express Urdu Daily, Mr. Farooq sir contributes to play a pivotal role in empowering communities through education, welfare, and responsible media. Dear audience, please welcome him with huge round of applause. To the extreme left, we have Dr. Tanveer Ahmed, who is an associate professor in the College of Journalism and Mass Communication, MGM University, Aurangabad. He is a passionate teacher with nearly 11 years of teaching experience and has worked in the media industry for almost 8 years with media houses like Indian Express and other regional newspapers, along with providing inputs to Times Now news channel. His industry experience as reporter, chief correspondent, and public relation officer has enhanced and enriched his teaching skills. Barakallahu feek. He has presented and published more than 25 research papers in Scopus Indexed and reputed journals. He has also completed 2 seed money projects on social issues. His updated knowledge on academic policies and curriculum framework has helped him designing curriculum for NEP 2020 implementation at undergraduate and postgraduate level. His contribution is acknowledged by one and all. Dear audience, let's welcome him with a huge round of applause. मैं आपकी तरफ से और एजुकेशन एक्सपो की तरफ से हमारे पैनल को कुछ चीज़ें बता दूं पैनल डिस्कशन के बारे में. सबसे पहले वी डू दिस पैनल डिस्कशन इन इंग्लिश. वी कैन स्विच ओवर इंग्लिश टू उर्दू टू हिंदी. देन ये डिस्कशन में हम एक पॉइंट लेते हैं. पॉइंट पर एक पैनलिस्ट या सारे पैनलिस्ट हम डिस्कस करते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेते हैं. अगर कोई पैनलिस्ट सोचे कि ये पॉइंट पर आपका एक्सपर्टीज और वैल्यू ऐड कर सकता है, एंड देन यू कैन जंप इन टू द डिस्कशन एंड वी कैन एक्सप्लोर वेरियस ऑप्शंस. हम आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ड्रॉप आउट्स और स्ट्रैटेजीज हाउ टू प्रिवेंट इट. आप जब यहाँ नहीं थे मैंने थोड़ी सी लिबर्टी ली और मैंने ऑडियंस के साथ कुछ इंटरेक्शन करना शुरू किया. And mashallah, I was very concerned as well as curious to know the insights that they are also carrying with them. और बहुत बड़े concern के साथ वो आज हमको यहाँ सुनने आए हैं. मैं वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो 1-2 माइक्स यहाँ ऊपर स्टेज पर ला दें पैनल के लिए प्लीज. तो सर पहला मैं रीज़न डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एंड as this is the first topic, first point to discuss, मैं चाहूँगा कि आप सब इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स दें कि ड्रॉप आउट या उसके रीजंस क्या होते हैं. Why do you think that students drop out of schools in India and particularly in minority communities? तो मैं पैनल को ओपन करता हूँ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firstly, Jazakumullah for the very generous introduction. Alhamdulillah. You see, there are many reasons why children drop out. And I do not like the word drop out. And I always tell people, a true teacher is that teacher who is able to inspire and motivate the reluctant learner. He is a person who tries to understand the background. What are his aspirations? You see, every child comes to school with 3 things. He comes with an IQ, a baggage of values, and attitude. A great teacher
never gives up on his learners, number one. A great teacher nurtures him, holds him by the hand, and says, you know what? You and I can do it together. A teacher is a sage on the stage. He's not a sage on the stage, but a guide on the side. It is those personal conversations that you have with the child, and you'll tell the child one fundamental thing, that I care about you. I'm not only concerned about your cognitive development, I'm concerned about you as a complete individual. I believe in you. I believe that you're capable of great things. That's one point. The second point is this: the children themselves, what we need to understand, that some of them come to school from homes that are dysfunctional. Some of them come from homes in which the parents, may Allah bless them though, are in no position to uplift them and motivate them. And some children have what I call low self-esteem. Some children, for example, do not see the need for schooling. So as schools, sadly, many schools have become very theoretical spaces. They are not relevant. The child will ask themselves, why am I learning this? How would it benefit me? How would it benefit me? So if we at school need to have a particular ethos, we need to create a particular atmosphere at school that the child knows that me, the teacher, I'm concerned about him. I'm concerned about his well-being, and that makes a difference. Now sometimes, and you know the situation is multifactorial, right? We often say that going to school will be a recipe for success. But let us be honest, academic success on its own does not mean you're going to succeed. The landscape has changed. But if a child is in the school, has a particular talent, particular thing that he wants to do, he must be encouraged. But those students who leave the school, it must not be because of the school itself. It must not be because the teachers, the principals, are not creating an environment of love and affection. And we are people of faith. And our Nabi sallallahu alaihi wasallam was really the best teacher, a teacher that was able to inspire. There are two more things I want to say. I don't want to dominate this conversation here, right? There are two more things that I want to say. I'll give you one example, which I shared early on. In my first year of teaching, there was a student who was not paying much interest, and his work was very, very untidy. So I was getting impatient, you know. I just started. I was getting impatient, and Allah put it in my heart. He says, go and speak to him alone. Get to know him. And really that was for a turning point in my life as a teacher. So I called him there in the break time, and I said to him, my boy, tell me about your home. Tell me about your background. After 2 minutes, I held his hands and I was crying. He said to me that I stay so many kilometers away. I get a lift in a lime quarry truck. I come to school 5 o'clock in the morning when it is dark. When I go home, it is dark. And in our home, we don't have to have lights. I do my homework under a street lamp. I held his hands, you know. I said, I'm so sorry. I'm so sorry. And you know what happened? Even though his circumstances never changed, his work improved. Why? He felt a connection with me. Because learners must trust the teacher, must believe in him. They say, as long as you are saying that, I believe in you. So that's I'm warming up, you know. Normally when I speak, I require a calendar, you know. माशाल्लाह यहाँ पे तालीम के एक्सपर्ट्स हैं, मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब, तनवीर साहब और कई टीचर्स हैं यहाँ पे। पहले मैं अपना छोटा सा तजुर्बा आपके सामने रखूँगा। ड्रॉप आउट होने के वजूहात क्या हैं। अभी बताया गया कि ये अर्ली मैरिज, चाइल्ड लेबर
गुर्बत वगैरह अक्सर लोग बोलते हैं ये, और लीडर खास तौर पे तकरीरों में ये चीख चीख के बोलते हैं गुर्बत की वजह से ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। मैं इसको नहीं मानता। ठीक है, ड्रॉप आउट होता है इन चीज़ों की वजह से, 10, 15, 20% होता है, लेकिन 80%, 70% ड्रॉप आउट जो होता है बच्चे की सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से ड्रॉप आउट होता है। वो स्कूल आता है, तैयार हो के आता है, हासिल कुछ नहीं करता। आप ऑफिस जाते हैं, टीचर हैं यहाँ पे, सुबह सुबह तैयार होके पाबंदी से स्कूल जा रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा, और कभी ज़िंदगी में कुछ मिलेगा क़तई यकीनी नहीं है, बल्कि यकीन है कि नहीं मिलेगा। तो आप कितने दिन स्कूल जाएंगे? टीचर ऑफिसर कितने दिन ऑफिस जाएगा? वो जाना बंद कर देगा। यही मामला बच्चे के साथ होता है। जब क्लास में बैठता है और टीचर बोलते हैं थोड़ी देर के लिए यस मैडम, ओके मैडम बोलेगा, लेकिन वो समझ में नहीं आने की वजह से वो दबाव का शिकार होगा। जब बाहर जाएगा दोस्तों के साथ थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फील करेगा अपने आप को, और वो रिलैक्सेशन और सेटिस्फैक्शन बाहर मिलेगा, क्लासरूम में नहीं मिलेगा उसको, और रफ्ता रफ्ता वो बाहर जाते हुए रिलैक्स करते रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप आउट हो जाएगा। वो लोग झूठ बोलते हैं जो ये बोलते हैं कि गुर्बत की वजह से असल होता है। 15-20%, 25% होता हो, यकीनन होता है, लेकिन हम ये जो बच्चे हैं 70%, 80%, 75% जो सब्जेक्ट में वीकनेस की वजह से हो रहे हैं, अगर उनके ऊपर हम फोकस करें, उनकी ज़रूरत को पूरा करें, उनकी बेसिक ठीक करें, तो ये मसला हल हो सकता है। उसके कई तरीक़े हैं। हम छोटा सा तजुर्बा कर रहे हैं बीदर में, और पूरे इंडिया से चैलेंज के साथ ड्रॉप आउट को भेजिए। कभी ज़िंदगी में पेन नहीं पकड़ा उसको भेजिए, 12 साल 18 साल का भेजिए, उसको हम 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर बेसिक से पेन पकड़ना से सिखाते हुए उसको 10th भी पास करा रहे हैं, और बाद में प्रोफेशनल कोर्सेस में भी भेज रहे हैं। हम इस पर गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बात करेंगे, हल निकालेंगे। हल है, यकीन कीजिए हल है, बस हम तय करके आगे बढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बातें आ गई हैं वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, और वो अच्छी बातें आई हैं। मेरा मानना ये है कि ड्रॉप आउट कोई एक एंगल से आप उसको कंक्लूड नहीं कर सकते, मल्टीपल रीज़न्स हैं, और सारी बातें यहाँ कहने का एक सवाल में मौका नहीं है। लेकिन जो 2 बातें आ गई हैं उसको नहीं दोहराते हुए मैं तीसरी बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो बात है कम्युनिटी के शऊर का, उनकी सोच, उनका माइंडसेट, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। सोच अगर सही होगी तो नताइज उसके मुताबिक आएंगे। यहाँ बात कम्युनिटी के उन, यानी यहाँ पर माइनॉरिटी कहा गया है, लेकिन हम इसको कम्युनिटी कंसंट्रेट करके बात कर रहे हैं। तो उन बच्चों की बात नहीं हो रही है जो एजुकेशन में आखिर तक चलना चाहते हों, या आ ही गए हैं तो ठहरना चाहते हों। बेशतर तो ऐसे हैं कि जिन्होंने स्कूल देखा नहीं होता है। तो यहाँ जो आ गए उनका सवाल है। तो एक अच्छी बात जो अब्दुल क़दीर साहब ने फरमाई कि जब कोई बच्चा आ जाए तो आने के बाद उसको स्कूल की अहमियत और ज़रूरत महसूस होनी चाहिए, और वो उस वक्त होगी जब वो आने के बाद उस मकसद से वो कन्विंस हो, उसको एंजॉय करने लगे। और एंजॉय करने के लिए अगर सब्जेक्ट टीचर, यानी आप मैथ साइंस तो हमारे पास मुश्किल हो गया है, हालांकि शायद सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स है, अगर उसके कंसेप्ट्स को क्लियर कर दिया जाए फिर वो तालीम कम और शौक़ ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा खौफ मुस्लिम तलबा में शायद मैथ्स ही को लेकर है, जिसकी बेस पर साइंसेस है। इसलिए अब जो कंसेप्ट कंसंट्रेट कर रहा है वो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स पर कंसंट्रेट कर रहा है कि ये 2 चीज़ें हो जाएं तो तालीम ठीक हो जाती है। लेकिन 2 चीज़ों के लिए सब्जेक्ट टीचर को रिस्पॉन्ड करने के लिए हम जिम्मेदार करार दे रहे हैं, बजा है। लेकिन मैंने जो सवाल रखा अपना, ये अपनी सोच रखी, वो ये है कि वो माहौल क्यों ऐसा है जो इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो उसके मल्टीपल फैक्टर में सब इसमें शामिल हैं। इसमें मिल्लत शामिल है, मिल्लत के इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट शामिल है, उनके टीचर्स शामिल हैं, और ये सबकी सज़ा भुगतते हैं नौनिहाल बच्चे। इसमें टीचर से कहा जाए तो टीचर ये कहता है कि साहब हमको देते कितना है,
आप 10,000 दे रहे हैं तो हम 20,000 की सर्विस दे देंगे। 10,000 रुपये में 2 लाख की सर्विस क्यों देंगे? जिन बच्चों से हम मिसाल देते हैं उसको। मैनेजमेंट्स की नौयत ये हो कि उनके नज़दीक वो इंस्टीट्यूशन नस्ल साजी का इंस्टीट्यूशन ना हो, बल्कि शॉर्ट टर्म इस्तेमाल करे तो उनकी दुकान हो। तो उनकी दुकान में कितना खर्च से कितना नफ़ा निकलेगा उतना वो अपनी दुकान को चलाते हैं। इस सब पर सबसे बड़ा जुल्म जो है वो पेरेंट्स का है कि वो अपने बच्चों को अपना मुस्तकबिल नहीं समझते। मोहब्बत तो करते हैं लेकिन मोहब्बत की सोच में उनके नक्स है, और वो मोहब्बत के लिए दूसरी तरफ तो खर्च करते हैं लेकिन बच्चों के तालीम के मेयार पर वो खर्च नहीं कर पाते। इवन ये बात भी जो गरीब पेरेंट्स हैं, मैं भी ऐसे पेरेंट्स, क्योंकि हमारा तो बेशतर काम ही ज़रूरतमंद पेरेंट्स में है, तो उसमें मैं ऐसी माओं से वाकिफ़ हूँ जो घर में मेड्स का काम करती हैं और वो मेड्स अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाती हैं। नहीं दे पाती हैं, हम उनकी फ़ीस के लिए उनको फिर सख्ती करते हैं, परेशानी बयान करती हैं। लेकिन कंसिडर करें भी तो कितना कंसिडर करें, और कंसिडर करें तो वो 5,000 और 7,000 और 10,000 की सैलरी भी फिर कहाँ से दें। तो मैं इन हवालों से ये कहना चाह रहा हूँ कि एज अ होल जिस चीज़ पर कंसंट्रेट करना है, उस सोच पर कंसंट्रेट करना है जो बीमार है, और उस सोच को बदलना है जिसमें सारे लोग उसके शरीक हैं, चाहे वो टीचर हों, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे वो समाज के एक्टिविस्ट हों या फिलैंथ्रोपिस्ट हों, जो भी हों। तो वो सारी चीज़ें अगर मिलकर काम करेंगी तो हम फिर वो जो बच्चे आ गए हैं, जो नहीं आए उनको छोड़िए, ड्रॉप आउट उनका सवाल है, जो आ गए हैं उनको हम कैसे रिटेन कर सकते हैं। और सिर्फ रिटेन करना इशू नहीं है, इशू यह है कि उनको कैसे तराशते हैं, कैसे शक्ल करते हैं कि फिर वो समाज में हौसले के साथ कॉम्पीट कर सकें। और बीइंग अ माइनॉरिटी, ये उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो और कम्युनिटीज़ से ज़्यादा स्ट्रगल करें और ओवरकम करके अपनी हैसियत को मनवाएं। तो कॉसेस पर हमको बात करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। सब हमारे बुज़ुर्ग हैं और एक्सपीरियंस लोग हैं ये लोग, इनके मुकाबले में तो मैं बहुत तालिब इल्म हूँ। एक जो बात मतलब मुझे सामने लानी है, जैसा खामसा साहब ने शुरू की थी बात, कि ड्रॉप आउट एक नेगेटिव टर्म है। अगर आप अभी वेबस्टर की डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें चेंज किया है उन्होंने। पहले जो टर्म होता था वो होता था कि अ पर्सन हु हैज़ अबंडेंट कोर्स ऑफ स्टडी, अब उसमें उन्होंने ऐड कर दिया है। वो अब बहुत मज़ेदार डेफिनेशन अगर वो पढ़ेंगे तो आप, और ये क्यों ऐड हुआ है उसकी वजह भी आपको दिखता है कि आजकल जो निज़ाम चल रहा है, कैपिटलिस्ट निज़ाम, इसमें बहुत सारे लोग वो आइडियल्स बन गए हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। इंडिया में जैसे तेंदुलकर है और आप समझ लीजिए बिल गेट्स है, ये सब, तो उस डेफिनेशन में ये लोगों का बहुत बड़ा रोल है। तो उस डेफिनेशन को उन्होंने क्या कहा है, वन हु हैज़ रिजेक्टेड कन्वेंशनल सोसाइटी टू परस्यू एन अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल, उसको उन्होंने टोटल लाइफस्टाइल से जोड़ दिया है। एजुकेशन के जरिए एक लाइफस्टाइल मिलती है और उसके अलग रकम जो है एक नई लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करता है, दैट इज व्हाट इज ड्रॉप आउट। ये नई डेफिनेशन आई हुई है। तो ये थोड़ा हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जैसे बात आई कि तालीमी इदारे कुछ कारगर नहीं हैं, लोग हो सकता है कि उससे ज़्यादा काम कर जाएं, तो ऐसे भी हो रहा है। तो ये पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है, पर जब शऊर के साथ हो। पर अगर आप अरुण मेहता की जो रिपोर्ट है इंडिया के इसके अंदर देखेंगे मुस्लिम स्टूडेंट्स पर, उसमें आप स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि इंडिया का मुस्लिम स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट 5th to 8th में होता है। 5th to 8th ये सबसे ज़्यादा है। 15% स्टूडेंट होते हैं जो होते हैं 5th तक, उसके बाद सीधा वो 10% पे चले जा रहे हैं और हायर एजुकेशन में पहुंचते हैं 10% बस। तो ये उसका उन्होंने जो एनालिसिस दिया है रिपोर्ट में, उसमें यही दिया है कि ये जो तबका है ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और फाइनेंशियल रीज़न की वजह से ही ज़्यादातर ड्रॉप आउट होते हैं मुसलमानों के बच्चे अक्सर जगह। और ये जो बात आ रही है बिल्कुल सही बात है कि स्कूल्स वो दे नहीं रहे जो देना चाहिए। इसीलिए आज कोचिंग सेंटर्स का सब ज़माना है कि लोग रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं पर कॉलेज कभी नहीं जाते, पर कोचिंग रेगुलर जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है उसका। तो ये एक एजुकेशन सिस्टम भी एक बड़ा रीज़न है कि क्यों ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। अभी जैसे बात आई तो हो सकता है उसके सॉल्यूशंस पे भी बात आए।
तो बस ये चीज़ मैं मतलब ऐड करना चाह रहा था। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और तनवीर सर ने जो अभी डेटा जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं सर पावर्टी इज़ अ रीज़न, जैसा आपने भी उसका इकरार किया। अराउंड 25% नहीं लेकिन 32% से ज़्यादा बच्चे फिनेंशियली या इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से स्कूल छोड़ते हैं। 30% से ज़्यादा सर, जैसा आपने बताया, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़ के उनको उनके मतलब का स्कूल में मिल ही नहीं रहा है, या स्कूल वो पर्पज़ फुलफिल नहीं कर पा रहा है जिस वजह से स्कूल था। और अब तनवीर सर बार बार कैपिटलिज्म की तरफ लेकर जाते हैं डिस्कशन को, मैं जानता हूँ, बट येस दैट इज़ अ फैक्ट कि कमर्शियल सेंटर्स वो सर्विस दे रहे हैं जो एक्चुअल में स्कूल का काम हुआ करता था। इन समरी, ड्रॉप आउट्स, चाहे उसका नेगेटिव कॉनोटेशन ही हम ले, तो पावर्टी, सोशल डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जेंडर बेस्ड इश्यूज़ या लैक ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे बहुत सारे रीजंस है, वजूहात है जिसकी वजह से स्कूल में बच्चा जाना छोड़ देता है। एजुकेशन जाता है लेकिन एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ड्रॉप आउट हो जाता है। ड्रॉप आउट का पॉजिटिव कॉनोटेशन या जो एक एंगल है, मैं तनवीर साहब के साथ सुबह में डिस्कस कर रहा था, वो हम आपके सामने थोड़ी देर से लेकर आते हैं। लेकिन अभी जो ड्रॉप आउट का हमने प्रॉब्लम समझा है सर, तो मैं अब्दुल खदीर सर को वापस मदऊ करता हूं कि वो अपने AICU के बारे में हमको और बताएं, जहां पर बच्चों को रेमिडिएशन क्लासेस दी जाती है और बाद में प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तैयार किया जाता है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। आप बताएं कि 31% स्टूडेंट जो है पॉवर्टी की वजह से ड्रॉप आउट होते हैं, तो हम 69% को बहुत आसानी से बचा सकते हैं इंशाअल्लाह। बारकल्लाह। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे थे, एक तो बच्चे, आप यहाँ पे कई टीचर्स होंगे, सब वाकिफ़ हैं, स्कूल वाले भी हैं। AICU हम जो है कोशिश किए, उसकी वजह AICU नाम की एक डिपार्टमेंट हम बना दिए, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। माशाल्लाह वो काम कर रहा। तो उसकी ज़रूरत कैसा हुई, हम जो है जब स्कूल शुरू किए थे तो हमको एहसास था कि तमाम तर तालीमी ज़रूरत हम पूरी करेंगे, स्कूल पूरी करेगा, तो फिर वो दीनी तालीम ज़रूरत है तो दीनी तालीम शुरू कर दिए। फिर जब छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आ रहे हैं, बड़े ख्वाहिश के साथ एडमिशन ले रहे हैं, फिर शाम में ट्यूशन जा रहे हैं, तो हमको बुरा लगने लगा। हम ऐसा लग रहा है कि ये हमारी इंसल्ट हो रही है, हमारे टीचर की इंसल्ट हो रही। और ख़्याल आया भाई कोई फैमिली डॉक्टर है, उसके पास मरीज़ जाता है और जाके इलाज करता है और फौरी उस डॉक्टर को दिखा के रोज़ जो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाता है इमीडिएटली, 6 महीने साल में सेकंड ओपिनियन के लिए नहीं, रोज़ ऐसे ही कर रहा। तो जाहिर है डॉक्टर को गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, वो अपनी इंसल्ट समझेगा ना, बोलेगा कि चल ठीक उधर ही जा, मेरे पास क्यों आ रहा। मगर ये टीचर और स्कूल वाले क्यों नहीं बोल रहे, ऐसी क्या बेहिसी हो गई है भाई। स्कूल को बच्चा आ रहा है रेगुलर, फिर इमीडिएट ट्यूशन जा रहा, ना तो स्कूल वाले को बुरा लग रहा, ना टीचर को बुरा लग रहा, हमको बुरा लग रहा था माशाल्लाह। तो हम क्या करें, फौरी जो है ऐलान कर दिए कि हमारा कोई स्टूडेंट ट्यूशन नहीं जाएगा, ऐलान कर दिए। लोग थोड़ा सा परेशान हो गए, ये क्या है, लेकिन 6 महीने साल के अंदर उसको यकीनी बना लिए कि शाहीन का कोई बच्चा ट्यूशन नहीं जा रहा। बाद में ख्याल आया कि भाई कुछ 2% बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम स्कूल में केयर करेंगे, उसकी ज़रूरत को पूरा करेंगे, 1 से 10 मरतबा पढ़ाएंगे। तो उस पर मेहनत हुई, कम वक्त में किस तरह से ऐसे बच्चों को इम्प्रूव किया जा सकता है और ट्यूशन की मजबूरी से ख़त्म किया जा सकता है। तो उसको सिस्टम को ट्राई करते करते, केस स्टडी करते, देखते देखते एक सिस्टम बनाए, उस सिस्टम का नाम रखे AICU। यानी हमारा मानना यह है कि बच्चे मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस की कमज़ोरी को लेके जाते हैं आगे, और बच्चे को लिखने पढ़ने नहीं आता, उस बच्चे को साइंस पढ़ा रहे हैं, सोशल पढ़ा रहे हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें, लेसन नोट मुकम्मल कर रहे हैं टीचर, और आके टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, उसके साथ धोखा हो रहा। उसको पहले मैथ्स और लैंग्वेज ठीक करो, जैसे कि मुस्तफ़ा फारूक साहब अभी बताए कि ये न्यूमरेसी और लिटरेसी की तरफ तवज्जो दो, फिर वो ठीक हो जाए तो बाकी बच्चे का इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो ये काम हम शुरू करें तो माशाल्लाह शाहीन आज ट्यूशन फ्री है, और उसके नतीजे में बीदर डिस्ट्रिक्ट का ट्यूशन फ्री है। ट्यूशन एक बीमारी है, कमज़ोरी है, ये ख़त्म होना चाहिए। हर अच्छे स्कूल में, हर बड़े स्कूल का अपना एक AICU होना चाहिए।
वहाँ पे सब्जेक्ट को कंप्लीट ठीक करना चाहिए। ये कोशिशें की गई हैं और इसके नतीजे में और बड़े काम हो रहे हैं। हम मदरसा प्लस, दीनियात प्लस, हिफ्जुल खान प्लस नाम के कोर्सेज शुरू किए हैं। इंडिया भर में ड्रॉप आउट को बुलाकर उनको सेंटर्स में रखकर उनको फिर से क्लास में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी तफसीलात भी इंशाल्लाह जैसे मौका रहा मैं बताऊंगा। AICU काम कर रहा है। AICU मस्जिदों में हो सकता है, मदरसों में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, घर किसी का बड़ा है, थिकली पॉपुलेटेड इलाके में है तो घर में भी एक AICU कायम कर सकते हैं। और AICU को एक्सप्लेन करने के लिए हम पूरे हिंदुस्तान भर से लोगों को मदऊ कर रहे हैं, बुला रहे हैं, दिखा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। मदरसे के ज़िम्मेदारों को बोल रहे हैं कि आप पास ये मॉडर्न एजुकेशन के जो टीचर हैं उनको हमारे पास भेजिए, हम ट्रेनिंग देंगे। इस तरह से अभी सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में 200 मदरसों के असली तालीम के टीचर्स को हम वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर वापस वहीं पे प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से AICU कायम करते हुए ड्रॉप आउट को वापस स्कूल से जोड़ा जा सकता है और स्कूल में से ड्रॉप आउट होने से रोका जा सकता है। बच्चा 5th के बाद से ड्रॉप आउट हो रहा तो ज़रा शऊर में आ रहा तो उसको एहसास हो रहा, इसलिए फिर वहाँ से ड्रॉप आउट हो रहा है। 4th 5th तक तो नहीं बोलता कि मैं स्कूल जाने पैदा हुआऊँगा शायद बोल के बैग लेके आ जाता, फील नहीं करता, टेंशन नहीं लेता। लेकिन जब उसको एहसास होने लगता है कि मैं आ रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो वहाँ से ड्रॉप आउट होना शुरू होता है। वेल हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। AICU एक टीचर 6 बच्चे होते हैं, वहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस इम्प्रूव करते हैं। पूरा सिस्टम है, हमारी वेबसाइट पे है और इसको हम ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, इसको फैलाना चाह रहे हैं। वेल आई एक्नॉलेज दैट के AICU जिसे हम यहाँ रेमीडिएशन के नाम से जानते हैं उसके बहुत सारे पॉजिटिव्स होते हैं। सर मेरा भी एक स्कूल है। मैं Day 1 से जब हम स्कूल स्टार्ट किए थे 2018 तो तब से ही रेमीडिएशन का प्रोग्राम चलाते हैं जिसे आज हम स्पेशल एजुकेशन नीड्स कहते हैं। स्टूडेंट की अगर एकेडमिक नीड्स हैं या फिर हाइपर एक्टिविटी की नीड्स हैं, मेरे पास में कुछ डिसलेक्सिया के बच्चे भी पढ़ रहे थे जिनके लिए हमने स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया, बच्चों को उसकी सर्विसेज दी और माशाल्लाह वो रेगुलरली बैक टू क्लासेस हो गए हैं। सो डेफिनेटली मैं अभी लास्ट वीक सर आपके पास जब कॉन्फ्रेंस थी तो मैं भी आया था और मैंने वहाँ देखा AICU अच्छे से फंक्शनल है माशाल्लाह। तो यस मैं अब इजाज़त दिए थे ना दरमियान में जंप कर सकते हैं बल्कि वो जो है रेमेडियल कोचिंग जो होती है वो जो भी आमतौर पे राइज है वो ऐसा है कि जनरल वार्ड में रखते हैं, 1 घंटे के लिए ICU में ले जाके फिर वापस ला लेते हैं। अरे ICU में ले जाओ, उसको फुल टाइम वहाँ रखो, सेहतमंद बना के फिर जनरल वार्ड में लेके आओ। रोज़ाना 2 घंटे ICU में लेके जा रहे हैं, ये जो तरीका है वो इफेक्टिव नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। डेफिनेटली जो प्रैक्टिसेस हैं, मैं सर की बात को आप तक और अच्छे से लेकर आऊँ या एक दूसरा एग्जाम्पल में लेकर आऊँ कि आप अगर ऐसे बच्चे की एकेडमिक सहूलियत, एकेडमिक लेवल आइडेंटिफाई कर लें कि बच्चे को यहाँ पर रीडिंग में प्रॉब्लम है तो पहले उसकी रीडिंग लिटरेसी इम्प्रूव कीजिए, उसकी एकेडमिक कम्युनिकेशन इम्प्रूव कीजिए और उसके बाद उस पर सिलेबस का बोझ डालें तो फिर वो सिलेबस मैच करने के लिए भी काबिल हो जाएगा इंशाल्लाह। सर बिफोर वी प्रोसीड फर्दर मैं फारूक सर आपसे लीडरशिप के हवाले से जानना चाह रहा हूँ कि स्कूल लीडर्स कैसे एड्रेस कर सकते हैं ये मसले को कि स्कूल में ड्रॉप आउट हम कैसे कर्टेल करें। एज अ टीचर, एज अ लीडर आप मुझे कुछ मशवरा देंगे प्लीज। देखिए, बहुत मैंने पहले जो बात कही वो वहीं से मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि आपका कंसर्न हो पहले कि आप ये करना चाहते हैं, तभी आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहेंगे। मैं आपके डायरेक्ट सवाल के जवाब पर आने से पहले एक बात जो मुझे खल रही थी उसको मिसाल बना के कहता हूँ। वो ये है कि ये एक पॉवर्टी एंड ऑल ये फैक्टर्स के अलग अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में उर्दू स्कूल सबसे ज़्यादा है, 100% ग्रांट के स्कूल हैं और टीचर्स की सैलरी 1 लाख रुपए से ऊपर ही होगी इसमें। तो एजुकेशन तो फ्री है बच्चों को, मदर टंग में है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्कूल बंद हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल शुरू हो रहे हैं और वो गरीब मुसलमान प्राइवेट स्कूल की तरफ डाइवर्ट कर रहा है। इसका मतलब पेरेंट को तालीम की कुछ तो अहमियत है। अब यहाँ पर यह है कि जो लोग इदारे चला रहे हैं
उनको अगर बुनियादी सोच उनकी ये हो कि किस काम का बीड़ा उन्होंने उठाया है, कारोबार तो 50 हो सकते हैं और उसमें नफ़ा भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का क़याम जो है एक मकसद ज़िंदगी है, और मकसद है तो वो कंसर्न उसमें होना चाहिए। कंसर्न होगा तो फिर वो क्वालिटी देंगे, तो क्वालिटी देंगे तो ड्रॉप आउट रुकेगा। तो इस हवाले से इसके कंसर्न की और शऊर की कमी महसूस होती है। अब कैसे करें? कैसे का एक तकाजा ये है कि जिनको शऊर है वो लोग इसमें आगे आएँ, और वो जो एजुकेशनल लीडर्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करें, उनको एजुकेट करें और उनको एजुकेट करके कन्विंसिंग आइडिया दें कि कैसे कर सकते हैं। इसलिए कि कोई एक स्कूल तो सारा कस्टमर अपने पास ला नहीं सकता, कॉम्पीट करके ज़्यादा ले लेगा। तो कस्टमर तो हर स्कूल के लिए अवेलेबल है। मैं कस्टमर दुकान कह के थोड़ा सा हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन माजरत के साथ कि कारोबार भी करना है तो अच्छे नफ़े से कीजिए ना। ट्रू। तो आप तो सर मकसद के लिए आइए, तो फिर तो आपकी दुनिया भी और आखिरत दोनों बन जाएगी। तो हमको लोगों को वो शऊर भी देना चाहिए और वो हुनर भी देना चाहिए जिससे इदारे कैसे डेवलप हो सकते हैं। एक मोटी मिसाल मैं देता हूँ कि हम जो एकेडमिशियंस हैं या सो कॉल्ड कम्युनिटी लीडर्स हैं, अब तक हमारे पास ये विज़न नहीं है कि बच्चों का फ्यूचर किन कोर्सेस में है। मेरा मानना यह है कि 99.9% मुसलमान वो मेडिसिन और इंजीनियरिंग को फ्यूचर समझते हैं। जी। बदलती दुनिया में अब ये एज गुड एज जो है सेकेंडरी कोर्सेस हो गए हैं, और इतने ज़्यादा अहम कोर्सेज सामने आ रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में जिसकी मालूमात ही नहीं है। तो जिन लीडर्स को मालूमात नहीं है तो वो अपने टीचर और स्टूडेंट को क्या देंगे? आपको तो बेस को ठीक करना है। तो आपके सवाल का मुख्तसर हासिल जवाब ये है कि पहले लोगों को वो उनकी सोच की आईसीयू को ले जाइए। उनको पहले लीडर की सोच को आईसीयू में ले जाइए। उनकी सोच को सेहत होगी तो फिर वो अपने हॉस्पिटल को ठीक करेंगे, और हॉस्पिटल ठीक उस वक्त होगा जब पेशेंट ठीक होंगे। तो उसका ओरिएंटेशन हो, कन्विंसिंग ओरिएंटेशन हो, रेगुलर कोऑर्डिनेशन हो, परसुएशन हो, और कोऑर्डिनेशन से हम अपने आप को उठाने की कोशिश करें। पेरेंट ये एडमिनिस्ट्रेशन अगर कंट्रोल में आएगा तो उनके ज़रिए से टीचर्स आएंगे, फिर टीचर्स पर भी हम डिस्कशन करेंगे, तो उनको कन्विंस करेंगे कि आज एट द मैक्स क्या हो सकता है हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम इसको बढ़ाएंगे, आप मकसद को बढ़ाइए। तो ये चीज़ कि उनकी शऊर की बेदारी हो, और उससे ज़्यादा ये कि उनको उनके मकसद ज़िंदगी से बहैसियत मुसलमान उनके फ़र्ज़ मनसबी से जोड़ा जाए। शुक्रिया। Well sir, I totally agree with you on this कि सबसे पहले हमको एज अ लीडर हमारा मुहासिबा करना है, और आईसीयू का जिक्र आ रहा है, तो यस डायग्नोसिस करके सफिशिएंट ट्रेनिंग, सफिशिएंट रेमेडीज अडॉप्ट करना ज़रूरी है। वाइल इंट्रोड्यूसिंग the program, Brother Idris Khamisa touched upon an important factor, that was empathy, and how you empathized with that boy of your class. So can you please elaborate on this? How can we inculcate such values in teachers, as you are into teachers training as well? So how can we inculcate such values in teachers who can then take this mission forward? Because the education is not just about dropouts. Actually, we are discussing the dropout as a major problem, but education is about serving the students who are with us. So can you please elaborate that? You know, there are a few important factors. If our schools, I'm going to start off and I want to repeat what I said, if our schools become dynamic places where students will want to be eager to be there, they find there is meaning in what is being said, they feel a sense of upliftment, they are inspired, they'll come there in their numbers, and the dropout will go lower down. There are some factors out of our control. The issue of poverty, even that is something that as a collective we need to address. It was pain the school that a particular child left the school because of the poverty-stricken background.
And I want to also say this, that one more point I want to make before I discuss what you asked me. There was a story of a teacher who had a pupil in the class who was extremely naughty. He was troublesome. But in his school life, that pupil passed away. And there were people who had a sigh of relief. He was troublesome. But his teacher began to cry. They said, I'm surprised that you are crying, you know. He was so troublesome. Look at the teacher's response. He said, maybe Allah sent that boy to me to teach me patience. Now the whole issue of empathy is not outside Islam. Our Nabi sallallahu alayhi wasallam, and therefore it is so important, if there are principals and educators here, that we need to develop the emotional intelligence of our children and ourselves. And our Nabi sallallahu alayhi wasallam was the finest exponent of that. They say EQ is worth twice the IQ. You have greater success with EQ because you're learning about yourself and learning the dynamics of relationship. So when you are in the class, you know the dua that I used to make. When I used to walk into the class, I say, Ya Allah, show me the unhappy child. Show me the unhappy child. And Allah used to show me the unhappy child. What's the use of you teaching all these concepts, the abstract concepts, the heavy philosophy, and some redundant things when the child is crying out for help and saying, I'm hungry. He's saying, I'm in pain. I'm disappointed. You understand? So we need to conduct workshops. And sadly, I'm saying this. Our Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam came as a teacher. Great teachers are a gift from Allah. If you don't have it in you, you can go for all the skills development. Your heart is not in the right place. So how do you develop empathy? There are many ways. I'll suggest 10 ways very quickly. The one way is this, that when you walk into the class, you must imagine that this is the ummah, that this is your ummah. They must understand that as part of the ummah, you worry about your neighbor. Part of the ummah, where someone is not well, you make dua for them. Part of the ummah is someone disappointed, you give them support. The second thing, we need to inspire teachers about those beautiful stories of our Islamic history, about people who were caring and loving and compassionate. The third thing that we need to do is we need to understand every child. Every child is unique. And those days of lecturing and sermonizing is over. In fact, in a study that was done in the University of Maine about how students learn, the students learn 5% by lecture method, 10% by reading, 15% by audio-visual presentation, 30% by discussion, 50% by interaction, 75% by doing it, and 90% by teaching it to others. So the learning itself must be far more active. It's not about sermonizing. The other very important point, which is very, very critical, that if you want to be a more effective teacher, a teacher with empathy, then you yourself must grow. You yourself must grow so that you can, instead of blaming those children, because the only limiting factor in the child's growth is the teacher. The other fundamental factor is to ask yourself this question, why are you teaching? You know, I ask people throughout the world, why are you teaching? And you can't believe the answers, man. The answers are so mundane. How I wish if they said to me that I teach because I want to give the child hope. I teach because I want him to learn, understand the deen of Islam. I teach because I want him to understand who Allah is. I teach because I want him to understand who the Prophet ﷺ is. I teach because I want to help him to live in a plural society. I want to teach because I want him to leave a legacy. And that's a very important thing. The other critical aspect is this, that what is lacking in our schools is dynamic leadership.
Because it is said, if we teach children how we were taught, we rob them of their tomorrow. If we teach children how we were taught, we rob them of their tomorrow. And the other critical thing is this, that you, as I said earlier on, you got to understand that particular child. How you can understand them is to interact with them. I remember I visited a school in the UK, and I asked them, where's your headmaster? He said, go to the lunch break. He's probably having lunch with some of his students. When I went there, what did I see? He had 3 students there. They finished their lunch, and he lifted up his hands, and he was making a dua. And he brought tears to me. You know, got you. The last point I want to make is this. I really believe this. And inshallah, this is my dua. My dua is that Allah forbid that when I walk into the classroom, they are put off from Islam. I pray when Allah grants our young boys and girls, when they become adults, Jannah, inshallah they will say, Ya Allah, I only want to go there with my Maulima, my Maulim or my Mudir. And the whole thing is this, there is so much of information about empathy, so much of information about EQ, and we have learnt it. The whole issue, the difference between sympathy and empathy is the following. Sympathy, you feel pity for someone, but empathy is when you feel their particular pain. Definitely. You can clap, no problem. I like it. Barakallahu feek. Well, that's of utmost importance. Without empathizing, we cannot nourish our child as we want it to be. Tanvir bhai, do you want to? Yes. I need to interrupt with. Yes, absolutely. While you proceed with this answer, I want you to bring in the discussion the role of media. हम मीडिया को कैसे इन्वॉल्व करें ड्रॉप आउट्स को कम करने के लिए. आप दोनों चीजें एक साथ ले प्लीज. I agree with the Idris sir that what he said, and it is the idealistic thing that he has said. But I would like him to empathize with our teachers also. That is a big problem. Because our teachers need to be empathized. Reason is because private schools is another part which sir had discussed regarding the salaries. But what our government teachers are going through, that is also one of the hell. A teacher is enforced with everything other than teaching. Absolutely. When you are telling them to empathize with the student, many times some teachers are almost for 6 months they are not even in the school also. Election duty वगैरह. They are forced to do others' duties, so many duties that they never go to school also. So they also need to be empathized. That is my point. Could I respond to that? Yeah. You know, this is what I believe in. I know teachers go through challenges, and therefore their reward is with Allah. We need to look after them. But the critical thing is, when you are a teacher, it's a huge amana from Allah. You should not allow your challenges to impinge on your relationship with them. You should not allow your challenges to shortchange students. You should not allow your challenges to not to give children hope. I don't disagree with what you are saying. I also conduct workshops with teachers, but Allah bless you for thinking about them. And that is very, very important, because it saddens me when a teacher says, you know what, no one acknowledges me, no one does this, so I'm not prepared to do extra work. The extra work a teacher does is the work that he's supposed to do. It's not extra for a teacher. The proverbial extra mile is something that you're supposed to do. And I'm not exaggerating. I cannot thank Allah enough that I was a teacher. And I'm saying it not to validate myself, it's just to share something to make it authentic. When my children were unwell, I used to visit them at home. When my students went through challenges, I should visit them at my own expense. I visited them. And therefore today, I can look at them in the eye, and they can look at me in the eye. And when I see them, I become emotional, because I treated them as my own children. I gave them love, affection. And I said to them,
that I'm not here only for your academic success. I'm here for your holistic being. And please believe me, until the day I die, I'm here to support you. So that's what you are saying is right. So you need a head teacher who is dynamic, inspirational, who can motivate his learners to do great things. He can motivate his teachers. So the atmosphere at school is like one family. So the child that comes to school, it is as if I'm coming home. I'm coming to caring people, right? But I know that there are, sadly, I often say this, some teachers should not be teaching. They should be rather be morticians, should work in a funeral parlor. They don't have it in the heart, you know. You can clap here, please. आप मीडिया के बारे में कुछ Yes. डिस्कस जी हाँ अभी जैसा बात आई क्योंकि मतलब मैं अभी आप लोग सब इससे इत्तेफाक रखेंगे कि मुश्तफा साहब ने भी बताया कि वालिदैन में बहुत ज़्यादा कंसर्न है एजुकेशन को लेकर और हर मतलब जो लोग कुछ कमा भी नहीं रहे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं छोटे मोटे काम कर रहे हैं वो भी चाह रहे हैं कि अपने बच्चे पढ़ें तो ये एक शऊर तो बेदार हुआ है पूरी मतलब मुसलमानों में ही नहीं दूसरे कौमों में भी हुआ है कि लोग पढ़ाना तो चाहते हैं और बिल्कुल चाहते हैं क्योंकि और मेरे ख्याल से ये मीडिया का ही इसमें बड़ा रोल है अगर आप देखेंगे कि मीडिया सक्सेस स्टोरीज बताता है लोगों को आप सिर्फ देखें कि भाई कैसे गुजरते हैं लोग जो है कुछ गरीब थे अभी आपने देखा होगा एक बहुत फिल्म हिट हुई है नेशनल अवार्ड भी जिसको मिला है 12th फेल के नाम से ये मीडिया का ही एक रोल है कि लोगों को इंस्पायर करती है मोटिवेट करती है कि वो कुछ हासिल कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से मीडिया ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया है वैसे भी कि लोगों के अंदर शऊर हो पर दूसरी चीज़ जो मैं अभी बताना चाह रहा था जो इदरीस साहब से मैं मतलब उससे ये भी कर रहा था कि इंडिया की जो डेमोग्राफी है ये बहुत अलग है दूसरी जगह से हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स में भी जो तादाद है गवर्नमेंट की तो मतलब उसका लिमिट नहीं है प्राइवेट स्कूल्स में भी जो तादाद है उसमें इंडिविजुअल अटेंशन एक बहुत मुश्किल काम है हमारे टीचर्स के लिए मतलब उसको पूरा सेमेस्टर निकल जाता होगा सब बच्चों को समझने के लिए कि इनके नाम याद रखने के लिए सबसे पहला काम ये होता है तो ये भी एक उसको हर्डल है तो मीडिया के साथ मैंने जैसे ये है कि भाई मीडिया बहुत मोटिवेशन इंस्पिरेशन आजकल आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब के थ्रू जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स चल रहे हैं सबसे ज़्यादा कमाने वाले यही लोग हैं और ये सब लोग मोटिवेट करते हैं एजुकेशन के लिए तो एजुकेशन का शऊर तो है ज़रूर बेदार हुआ है पर उसके लिए मैं जैसा ये बताना चाह रहा हूँ कि एक इकोसिस्टम जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है और उस इकोसिस्टम को सुधरना चाहिए जैसे हमारे बुजुर्ग ने भी फरमाया खदीर साहब ने कि इकोसिस्टम अगर अच्छा रहेगा जैसा उन्होंने कोशिश की है उस इकोसिस्टम को बनाने की अगर ऐसा कोई कोशिश हो क्योंकि मीडिया की तरफ से मुझे नहीं लगता कि मीडिया कभी डीमोटिवेट करता है या एजुकेशन की तरफ करता है ये अलग बात है कि आजकल जैसे इंडियन आइडल और ये जैसी चीज़ें आ रही हैं जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है तो इसमें भी एक बड़ा रोल है कि फैसिनेटिंग या जिसको कह सकते हैं ग्लैमर दुनिया को देखकर लोग पढ़ाई से छुड़ाना चाहते हैं क्योंकि मैं मीडिया का प्रोफेसर हूँ मुझे पता है हमारे यहाँ फिल्म फोटोग्राफी ये सब सिखाया जाता है तो हमारे यहाँ जब स्टूडेंट आता है तो उसका एक जनरल परसेप्शन ये होता है कि मुझे पढ़ना नहीं है आई डोंट वांट टू स्टडी रीड राइट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी आई नीड टू हैव अदर एक्टिविटीज़ एंड दिस आई थिंक समवेयर मीडिया हैज़ प्लेड द रोल इन दिस ऑल्सो So do you think, I mean, don't you think that media is distracting as well? एक तो मोटिवेट कर रहा है एक एंगल में लेकिन वो एट द सेम टाइम डिस्ट्रैक्शन का भी काम कर रहा है क्योंकि मोटिवेशन होने के लिए हम हमारे अतराफ के हमारे उलमाओं को देख सकते हैं हमारे लीडर्स को स्कूल लीडर्स को देख सकते हैं लेकिन हम मीडिया में जाते हैं देखने के लिए और फिर उनके जैसा बनने के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं नहीं वो मैंने जैसे शुरू की थी बात कि सचिन तेंदुलकर की मिसाल मैंने इसीलिए दी थी आप रुक गए थे वहां पर तो यही मैं इसलिए बताया कि जब पर्पस दोनों का सेम है तो लोग कहते हैं कि इतने साल पढ़ाई में क्यों डालो पर्पस अगर पैसा ही कमाना है तो अभी यूट्यूब चैनल शुरू करके अभी कमा लो कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं यही है तो अब ड्रॉप आउट तो ऑटोमेटिक होगा ये जी तो ये जो मतलब जैसा हमारे बुजुर्ग ने पहले फरमाया मकसद ज़िंदगी असल है वो
कि जब वो हट जाएगा, आपके पर्पज से ही हट गया, तो उसके साथ ड्रॉप आउट तो लगना ही लगना है। क्योंकि अगर वो सोच रहा है कि पढ़ के भी मुझे पैसा ही कमाना है, तो क्यों मैं इतनी मेहनत करूं, वो तो अभी तो शॉर्टकट में भी कमा सकता हूँ, शॉर्ट्स करके, रील करके, टिकटॉक करके भी कमा सकता हूँ। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन है जो मीडिया का, और ये बहुत ज़्यादा हावी है बच्चों पर। माँ बाप में शऊर है पढ़ाने का, पर बच्चों में उसके बरखिलाफ जो है इस डिस्ट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा रुझान। दैट इज सैड रियलिटी। आपने जो बात, यस सर। ये जो है ना, देखिए, जो हम एग्जाम्पल्स मीडिया के ज़रिए से देखते हैं, तो इसमें मेरे दो कंसर्न ये है कि जो एग्जम्पशंस हैं उनको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। यहाँ जो है सारे बच्चों को मैं कहूँ कि साहब पढ़ने लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुम्हारा खेलने का ज़ौक़ अच्छा है तुम तेंदुलकर बन जाओ। तो तेंदुलकर की कितनी पोस्ट वैकेंसीज़ हैं, कितने लोग टीम बना सकते हैं और कितने लोग खेल सकते हैं और कितने जीत सकते हैं, चंद। और यहाँ करोड़ों स्टूडेंट हैं। या आमिर खान जो हैं कितने हीरो बन सकते हैं, जिनकी हम मिसाइल लाते हैं। इससे होप ज़रूर मिलती है, लेकिन इस चीज़ को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अब की मर्तबा एड्रेस तो किया है, और वो ये है कि उसको वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं वैल्यूज़ से। और वैल्यूज़ के साथ साथ जिस चीज़ को टेकअप कर रहे हैं वो बच्चों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो ज़रूरी नहीं कि किसी बच्चे को आप कंपेल करें कि वो मैथ्स पढ़े, अगर उसका मैथ्स का इंटरेस्ट नहीं है, वो आर्ट्स का हो सकता है। ऐसे डिफरेंट फील्ड में एक ही क्लास में 10 इंटरेस्ट के बच्चे मिलते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स है इसमें असल में थोड़ा समाज का ये फ़र्क भी है। आपने जो डाइवर्सिटी की बात कही है, आज जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना, वो हमारी सोच के एतबार से हमारी वैल्यूज़ में नहीं होते हैं। जैसा आप अगर किसी फिल्म स्टार को लाएंगे, तो यहाँ आपका पस मंज़र ये नहीं है कि आप फिल्म स्टार को इनकरेज करें, इसमें आपकी वैल्यूज़ दूसरी हैं। किसी अच्छे म्यूजिशियन को लाइए, किसी डांसर को लाइए, ये नहीं होती नहीं, हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हम। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेशनल सिनेरियो में अकोमोडेट तो हो सकती हैं, उसको हम रिकमेंड नहीं करते। तो इसको भी हमको कम्युनिटी को जो है एक्सक्लूड करके उन स्पेशलिटीज़ में लाना पड़ेगा जो रियल वैल्यूज़ हैं। और वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है जो हमारा एक पॉजिटिव और एक्सेप्टेबल तारुफ बनाती है। और उसकी सीधी मिसाल मैं दूं कि मीडिया के हवाले से ये बहुत जनरल हो गया है। कहीं कोई इंसिडेंट होता है तो डूबने वाले का, मरने वाले का, सिसकता हुआ वीडियो तो मिल जाता है, बचाने वाले आगे नहीं आते। तो लोगों में एम्पैथी की हम बात करते हैं, एम्पैथी का अंसर जो है वो मीडिया में कन्वर्ट हो गया। तो मैं खुलासे के तौर पर यस करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कम्युनिटी में अगर रेस्ट्रिक्शंस हैं तो बहुत नेचुरल है, और वो वैल्यूज़ को हमको ठीक समझाना पड़ेगा कि तुमको देश के लिए कैसे मुफीद बनना है। वो हमारे लिए है। हमारे लिए सेलिब्रिटी कोई अमिताभ बच्चन नहीं, हमारे लिए सेलिब्रिटी जो है वो एपीजे हो सकते हैं। ये कम्युनिटी जो है ऐसे लोग प्रोड्यूस करे जिन देश की रियल नीड हो, तो उस सूरत में फिर हम उस फ़ज़ा को आम कर सकते हैं। ट्रू। सर, असर की नमाज का वक्त करीब आ रहा है, हम पैनल डिस्कशन जल्द कंक्लूड करेंगे। बिफोर आई प्रोसीड विद द क्वेश्चन आंसर सेशंस और आपसे मैं एक सल्यूशन मांगू, सर आप दोनों से एक आखिरी सवाल था कि हम पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ाएं टू मेक श्योर कि हम ड्रॉप आउट को थोड़ा सा और कम कर सकें। तो उस मामले में आप अगर एक मिनट में थोड़ा सा कुछ बता दे, कुछ रहनुमाई कर दे, तो शायद हमारे लिए और आसानी हो जाए। देखिए, पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट यकीन बढ़ाना है। मेरा मानना है टीचर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है, और बच्चे को जो ज़रूरत है वो देना है। जो बच्चे को ज़रूरत है वो देना है। सिलेबस कंप्लीट करना के नाम पे सारी मेहनतें हो रहे हैं, और जबकि बच्चे को लिखने पढ़ने नहीं आता, इस पे तवज्जो दें। और ये हर स्कूल का लिए अलग अलग हो सकता है, स्कूल की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर कितने होते हैं, और हर क्लास के लिए नहीं, कम से कम 5th के बाद से बच्चों को मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस पहले ठीक कर लें, बाद में दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाएं। एक पॉलिसी स्कूल में बनाएं, स्कूल के जिम्मेदार बैठें, टीचर के साथ बैठें, इस बात को समझें, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज ठीक करके बाद में सारे सब्जेक्ट पढ़ाएं, तब जाके कुछ काम होगा। और इसके लिए वैसे हम कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले माशाल्लाह हैदराबाद में एक मस्जिद में ये स्टडी सेंटर शुरू हुआ है। वहाँ पर
बच्चों को बुलाकर उनकी बेसिक ठीक करने के भी इंतज़ाम हैं। आज मस्जिद रोशन में ये काम यहाँ पे औरंगाबाद में उसका इनाग्रेशन हो रहा, फर्स्ट फ्लोर पर और फर्नीचर रख रहे हैं। और कल इत्तेफाकन एक चर्च में ये इनाग्रेशन है, फादर विल्सन जो है बीदर में एक चर्च में ये काम कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ मुकामात पर बच्चों को बुलाकर सेल्फ स्टडी का भी मौका दें, डिस्ट्रैक्शन फ्री जो है इन्वायरमेंट बनाएं। ये मस्जिद चर्च, बड़े घरों में, बड़े बड़े हॉल में, मदरसों में ये बच्चों की बेसिक को ठीक करने का माहौल बनाएं। स्कूल में बच्चे की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें और माँ बाप को इन्फॉर्म रखें क्या पोजीशन है, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसके लिए हम यहाँ पे कोई एक सेंटर में ये कोशिश हो, सबको बताएं, फिर वो करके दिखाएं ताकि दूसरों के लिए भी आसान हो जाए। कोई एक स्कूल हो जाए कोई जहाँ पर इसका तजुर्बा हो सकता है, इसको देखने के लिए, समझने के लिए ज़िम्मेदार स्कूल के बीदर आ सकते हैं। हम उनको वेलकम करेंगे, वो हमारे मेहमान रहेंगे। हम चाह रहे हैं कि ये AICU का कल्चर जो है उसका सिस्टम फैले और हकीकी मानों में बच्चों की बेसिक ठीक हो जाए और वो ड्रॉप आउट होने से बच जाए। 8 तक बच्चा आ रहा है, उसको कुछ भी पढ़ने लिखने नहीं आता है तो ड्रॉप आउट हो जाएगा। उसको जो है उसकी न्यूमरेसी लिटरेसी को ठीक करें, वो ड्रॉप आउट नहीं होगा, ये मेरा ख्याल है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. The home, hello. The home, the parents are the first educators of children. There are two things I want to share with you very quickly. Every child needs the 6 A's. Every child must feel accepted by the home. Every child must feel affirmed. Every child must feel appreciated. Every child must be given affection. Every child must be given attention. And every child must be given positive attributes. When you tell your son or daughter, inshallah, you're going to be a leader someday, that talk of yours would lead to his positive self-talk. It will enhance his self-esteem. But if you tell your child you're stupid, you are silly, I don't know why you are born, it will lead to a negative self-talk and he thinks I'm stupid, I'm silly because my parents said that to me. So it's important that children are adequately, psychologically, spiritually, emotionally prepared for school life. So it's important that you hug and love them and say to them that you believe in them. Inshallah. So parents' involvement naturally आ जाएगा. Now sir, with your permission, let us throw the hall open for question answers. अगर audience में किसी के कुछ questions हैं तो हम वो अगले 10 मिनट में लेंगे और फिर अपना पैनल डिस्कशन कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। वॉलंटियर्स से रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए माइक पहुंचाएं प्लीज़। तवज्जो दिलाई गई, उसमें स्टूडेंट, टीचर्स, इंस्टीट्यूशंस, तमामी तरह के मामला आए हैं। मेरा सवाल मुश्तबा फारूक साहब की तरफ से है, की जानिब है कि आप सियासी लीडरान और दूसरे जो मरकज़ी सतह के जो हमारे लीडर्स हैं उनसे आप मुलाकात करते हैं। 2014 के बाद से बतदरीज हुकूमत की जानिब से बहुत सारी स्कीम्स जो माइनॉरिटीज़ के लिए हुआ करती थी वो बंद होती गई। अब इंतहा उसकी ये हुई कि 2022 में मौलाना आज़ाद फेलोशिप, नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम भी ख़त्म कर दिया गया। और एक सर्वे के मुताबिक एक बहुत बड़ी वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट की ड्रॉप आउट रेशो का चूँकि बुनियादी वजह फाइनेंशियल्स होता है, ये उससे उसका जो है तो तनासुब बड़ा है। तो क्या हमारी लीडरशिप जो है वो नेशनल लेवल पे कुछ ऐसा खाका तैयार कर रही है, इस पे सोच रही है कि हुकूमत पे किस तरह से ये बात जो है तो उनको बताई जाए कि जो अक़लियतों के लिए जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है उसको फिर से कैसे शुरू किया जा सकता है? अस्सलाम। तो अभी जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किए हुए है वो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजिकल असर्शन है और वो असर्शन से हम ये महसूस करते हैं कि कम्युनिटी अंडर सीज, अंडर थ्रेट है। अब इससे ओवरकम करने के लिए पॉलिटिकल स्पेस के लिए अब तक कम्युनिटी लीडरशिप में इंडिविजुअल्स की तो राय है लेकिन कंसेंसस नहीं बने कि हमको स्टेट से बहैसियत स्टेट एड्रेस करके अपने हुकूक़ की लड़ाई लड़नी चाहिए। एडवोकेसी, लॉबिंग, जो कुछ कहिए,
तो कम्युनिटी लीडरशिप के अभी ये कंसेंसस नहीं है कि वो स्टेट को स्टेट समझ कर डील करें। वो स्टेट को बीजेपी समझ कर डील कर रही है, इसलिए वो डिस्टेंट है। और डिस्टेंट होने की वजह से जो चीज़ चाहिए, जो आप कह रहे हैं, अभी वो इन जनरल कंक्लूड नहीं हुई है। तो जो एहसास है वो इंडिविजुअल्स का एहसास है, कलेक्टिव अभी इस नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। तो कम्युनिटी लीडरशिप जो है डिस्टेंट है, और डिस्टेंट होने की वजह से जब पॉलिटिकली आपके हुकूक जा रहे हैं उसके रिस्टोर करने या उसके हुकूक के उसूल के लिए, परसों का अमित शाह का जो बयान है कि जब तक बीजेपी का एक भी एमपी रहेगा मुस्लिम रिजर्वेशन पर बात नहीं होगी, यानी एक धांधली है कि भाई मुस्लिम्स को इशू नहीं है, जो बैकवर्ड है उसका इशू है, लेकिन मुस्लिम है तो नहीं मिलेगा। तो एक तरफ एक्सट्रीमिज़म वो है और दूसरी तरफ सिचुएशन ये है। लेकिन इंडिविजुअल ख्याल हो सकता है कि कल जाकर वो कल्मिनेट हो सके इंशाल्लाह। मेरा नाम शोएब सिद्दीकी है। गुज़िश्ता 45 साल से तालीमी मैदान से जुड़ा हुआ हूँ। उस तजुर्बे की बुनियाद पे मैं डॉक्टर खदीर साहब से सवाल तो नहीं, एक छोटा सा मशवरा देना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने नए एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारी चीज़ें शुरू की है ड्रॉप आउट कम करने के लिए, मेरा तजुर्बा ये बताता है कि अगर पेरेंट्स स्कूल में किसी भी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, ग्रांटेड हो, जब अपने बच्चे को दाखिला कराने जाते हैं तो शायद वो पहली बार जाते हैं, फिर उसके बाद साल भर नहीं जाते हैं। तो इसके ऊपर भी कुछ वर्कशॉप शुरू कीजिए आप। दूसरा ये है कि जिस इदारों को हुकूमत की तरफ से 100% ग्रांट मिलती, 50% ग्रांट मिलती, जो भी है, पेरेंट्स को ये अवेयरनेस पैदा करने की मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वो 4-5 पेरेंट्स मिलके उस स्कूल में जाएं, वहाँ की इंतज़ामिया को मजबूर करे कि पढ़ाया जाए, क्योंकि उस स्कूल के टीचर्स को जो भी है वहाँ पर उनको 100% पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है। आम तौर पे मुस्लिम पेरेंट काम करते ही नहीं हैं, ना वो कभी जाते हैं उस इदारे में कि भाई हमारे बच्चों को क्लासेस क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, रिजल्ट क्यों बराबर नहीं आ रहा है। ये काम के लिए भी अगर आप थोड़ा कदम आगे बढ़ाए तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है, ड्रॉप आउट कम हो सकता है। पेरेंट में बेदारी आए, टीचर्स के ऊपर ये ज़रूरत, उनके जहन पे ये बोझ आए कि पेरेंट्स हमसे सवाल करने आ रहे हैं। ये सवाल नहीं होता है, पेरेंट्स एक बार बच्चे को दाखिल कर देते हैं स्कूल में, फिर वो अगले साल ही आते हैं दोबारा। इसके ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी एग्जैक्टली इस पे कोशिश होना चाहिए, सब मिलके करेंगे इंशाल्लाह। एक अनाउंसमेंट मेरा है कि आप हजरात पूरे इलाके से कोई ड्रॉप आउट को जानते हैं जो 5th के बाद से ड्रॉप आउट हो गया है और नहीं पढ़ रहा है, 12-13 साल 15 साल की उम्र हो गई है, तो ऐसे 25 बच्चों को भेजिए। हैदराबाद में एक सेंटर है, वहाँ पर 100% फ्री उनको रहने खाने पढ़ने का इंतज़ाम होगा। ज़रूरी दीनी तालीम से ही वाकिफ़ करेंगे और फिर उसको 10th पास करा के भेजेंगे इंशाल्लाह। ऐसे 50 सेंटर इंडिया भर में शुरू करने की ख्वाहिश है। यहाँ पर आज सुबह में मौलाना अनीस साहब से बात हुई, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका अनाउंसमेंट करेंगे। वहाँ पर भी आप लोग ताउन कीजिए, आप बच्चों को ढूंढ के भेजिए, समझा के भेजिए। और वो जो मजदूरी कर रहा है उससे, उसके बच्चे के वालिद से पूछिए कि भाई क्या वाकई आपका ये बच्चा जो मजदूरी कर रहा है इसके कमाई की वजह से ही आपका घर चल रहा, तो उसमें भी जो है 50-60% ऐसे निकलेंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कमा रहा हूँ, घर में पकवान उसके बगैर भी हो सकता है, घर चलेगा, लेकिन ये आवारा फिर रहा है इसलिए भेज रहा हूँ। तो उनको समझा के मना के वो ऐसे सेंटर पे ले जाइए, उसको भी इंशाल्लाह बेसिक से पढ़ाकर उसको भी 10th पास कराएंगे। और ऐसे बच्चे जब 10th पास कर लेंगे, बाद में मजदूरी करके भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, वो आगे का एजुकेशन कंटिन्यू कर लेंगे। ये हमारा तजुर्बा है इंशाल्लाह। जी लास्ट क्वेश्चन प्लीज, एनी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इसमें क्वेश्चन ये था कि अभी आपने जितने लोगों को इनवाइट किया था एक्चुअली पेरेंट्स को, और तकरीबन स्कूल से, तो उसमें से 5% भी नहीं आएंगे जहाँ तक हमारा नॉलेज है। तो इसमें जो स्लम एरिया है जहाँ पे मुस्लिम बच्चे और दूसरे कम्युनिटी के हैं, और मेरा अक्सर उनसे बात हुई बच्चों से भी, तो जैसा सर ने पहले बोला था कि पढ़ाई से ध्यान हट गया और ये यूट्यूबर बन गए, और उनको पता चला कि यूट्यूब पे रील बनाओ या ये बनाओ, सोशल मीडिया से जुड़ गए तो पैसा कमा लेंगे हम, तो हमको ज़रूरत क्या है पढ़ने की। और अक्सर बच्चों ने यही जवाब दिया मेरे को। तो आप यहाँ पे 5% भी लोग नहीं है, तो ये लोग ये पूरा मैसेज कैसे कन्वे करेंगे उन पूरे लोगों को जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी
जो बहुत बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके लिए एक मशवरा ये था कि अगर आप हर स्लम एरिया में या अक्सर मोहल्लों में इसके छोटे छोटे कैंप ले और ख़ास तौर पे पेरेंट्स को इसके बारे में बताए कि इसकी वैल्यू क्या है पढ़ाई। आज तक हमारे बच्चों को बेसिक चीज़ों के जो ख़रीदते थे हम स्टेशनरी पे से, उनके नाम भी सही नहीं आते। तो ये इस्लाम एरिया की हालत है मुसलमानों की। और हम जो फोकस कर रहे हैं वो उन पे कर रहे हैं जो स्कूल में आ रहे हैं, जो प्राइवेट उसमें भी कुछ परसेंट है जो सही तरीके से पढ़ रहे हैं और बाकी सब बैकफुट पे है। तो इसको कैसे आप कवर करेंगे, और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम जो दूर है स्कूलों से, उनको कैसे आप कवर करेंगे? एक बाजी का भी सवाल है, वो भी सवाल लेकर हम दोनों जवाब एक साथ कंक्लूड करके पैनल डिस्कशन कंक्लूड कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अमारा सिद्दीकी है। आई एम अमारा सिद्दीकी फ्रॉम बोर्न इंग्लिश स्कूल। Sir, if we look at the government data, the higher rate of dropout is at higher education, like graduation and upper. Very few students are taking admission for graduation or engineering or whatever education is there, and they are ultimately dropping out after first year or second year. They are not completing the degree. Recent news came that after COVID, there was 8.5% dropout on higher education, especially in Muslims. So this dropout is higher education level. Ultimately what happens, they are getting unemployed, they are into some kind of poor employment, and a vicious cycle of poverty is going on and on and on. So there is a higher education among women, but men or boys are dropping out in higher education. What can we do to improve this situation, and how can we communicate this message to community that education of boys, especially in higher education, is very important because they are the leaders of home as well as society? Jazakumullah for your question. In fact, in South Africa, I am in charge of a particular bursary fund, and it is Allah bless the Musa family. So what we do is, when they come on the day we're doing the interviews, I conduct a program with them. I give them an idea about university life. I say to them, the freedom is frightening. What do you need to do? How do you manage your time? What kind of friends you need to have? I said, you'll have your low moments. What do you need to do? We have a mentoring program for them. My big issue is with schools, because the schools, in preparing them for the exit examination, they have forgotten to prepare them for life. And there is such a huge gap between school life and university life. And schools need to teach students about many things: how to write down notes, how to use a resource center, and so on and so forth. And regarding boys, it's very, very sad, and I'm saying this with pain in my heart. Many of our boys have become emasculated. It is our girls that are showing leadership. And as a result of that, our boys are intimidated by our girls that have got careers. Our boys are no more those people of courage, the Amir of the home, as it were. So what you are talking about is a real concern. And what is worse, you cannot tell your son, or, go to university, see how it is, give it a shot. Where is the accountability and consequences, So that what you are saying is something very, very critical, and it is a global issue. पहला जो सवाल था उसके लिए यानी वो था कि सब स्लम्स में, तो ये तो वाक़या ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी इस मुल्क में मैक्सिमम अर्बन है, और अर्बन रहते हुए उनका 72% जो है स्लम्स में है, और यहाँ उनको हम टारगेट कम कर रहे हैं, उसको करने की ज़रूरत है। ये तो वो लोग करेंगे जो कंटिन्यूस जो है कम्युनिटी एम्पावरमेंट का काम कर रहे हैं। हमको ये भी देखना चाहिए कि जो लोग सामने आए हैं वो एक अच्छा काम लेकर आए हैं कि, और लेकिन उनका प्रोग्राम कहाँ तक जा सकता है उस पर गौर करेंगे,
लेकिन उसके लिए मेरी दरख्वास्त ये है कि जिसका भी कंसर्न है वो उन लोगों से एक्सेस करें जो कम्युनिटी को सीरियसली देख रहे हैं और जा सकते हैं। मसलन वो जमातें हैं जो ये काम कर सकती हैं। तो अगर हमने इसको जमात तबलीग से या दीगर जमातों के ज़िम्मेदार से बात किया तो हमको अलग से प्रोग्राम ओरिएंटेशन के लिए ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जुमा के खुतबात काफ़ी हैं, बहुत नेचुरल है। और हर स्लम में हर रेडीमेड सेंटर है माइक के साथ, स्टेज के साथ। तो ऐसा कुछ चीज़ों को अलग से वर्कआउट करना पड़ेगा और चीज़ों का हल निकालना पड़ेगा। वो बहुत सीरियस बात है जो आपने कही है। दूसरी बात जो हमारी बेटी अम्मारा ने कहा है, ये बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की का ओरिएंटेशन और टीचिंग करती है ये बेटी। तो बेटा इसमें थोड़ा सा ऐसी इशू है जिस पर हमको अलग से बैठकर डिस्कशन करना पड़ेगा सीरियस हाउस में। आपके सवाल करने पर मेरे जहन में जैसे एक दो बातें आई हैं। हम लोग क्या है, बहुत ज़्यादा भारत में घटाइज्ड हो गए हैं। हम कम्युनिटी के सर्कल में सोचते हैं। अल्लाह ताला ने हमको किसी पाकिस्तान में पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने हमको भारत में पैदा किया है। तो हमको समाज में सोचना चाहिए। हमारा स्कूल होता है हमारे बच्चों के लिए। अरे जो आपके मिशनरी स्कूल्स हैं, मिशनरी 2% नहीं होते, 98% वो होते हैं। हमने अगर थोड़ा इसको इंक्लूसिव सोचा और अच्छे मॉडल इंस्टीट्यूशंस दिए तो नतीजे में हम उनकी क्वालिटी और उनके इनकम से अपने बच्चों को रिटेन कर जाएंगे। नतीजे में वो बच्चे फिर ड्रॉप आउट चाहे हायर स्टडीज़ का होगा नहीं होगा और नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। लेकिन ये करने के लिए फिर हमको हमारे जो अहले खैर हजरात है उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये फील्ड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, कुछ कमा भी लीजिए। आपको नफ़ा उस जैसा नहीं होगा बिजनेस जैसा, लेकिन यहाँ भी नफ़ा होगा। और यहाँ आप जो जनरेट करेंगे वो जनरेशन होगी। एक अप्रोच शायद ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इसको भी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कोर्सेज के लिए वैसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत नहीं है और वो कोर्सेज गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट किया है। स्किल इंडिया के नाम से कहिए या और कुछ हायर स्टडीज़ कोर्सेज हैं। तो हमारे बच्चों को बैक वक्त दो चीज़ें देनी पड़ेगी। उनको ऐसे कोर्सेज दीजिए कि इमीडिएट कमाने लगें और कमाने के साथ पढ़ने भी लगें। तो वो क्या सोर्स है, यानी लोगों की मुश्किल का हल दीजिए तो हल निकलेगा। तो ये सोच का तकाजा ये है कि एक इजलास में एक सवाल और सवाल का कोई अधूरा जवाब ये सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए वो लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो जमा हो, बार बार जमा हो, इस पर डिस्कशन करें और उसका कोई एक्शन प्लान हो और उसका फॉलो अप हो। जज़ाकल्लाहु खैर। विद दिस वी कंक्लूड टुडेज सेशन। लेकिन जाते जाते आप सबके कुछ पॉइंट्स मैं रिपीट करता चलूँ ताकि हम एक्शन प्लान बना लें। सबसे आखिर बात को पहले लेते हैं कि वापस बैठना होगा। वी हैव टू सिट अगेन एंड अगेन एंड अगेन जब तक एक ब्लूप्रिंट सामने ना आ जाए कि ये एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम जो है जिसे हम आज ड्रॉप आउट के नाम पर डिस्कस कर रहे हैं उसका कोई एक लाहे अमल या प्रॉपर सल्यूशन ना बना ले, तब तक हम वापस बैठेंगे। एंड मैं एजुकेशन एक्सपो के बिहाफ पे आपसे फिर से एक इनवाइट कर लेता हूं ऑफिशियली कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन अगले महीने फिर बैठते हैं एंड लेट अस फाइंड सम सॉल्यूशंस टू इट। दूसरा जो यहाँ पर डिस्कशन में आया, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कुछ ना कुछ हद तक हमें बढ़ाना पड़ेगा। जैसा शुभ सर ने भी बात उठाई थी ऑडियंस में से कि बच्चा एडमिशन करवाते टाइम पेरेंट्स आते हैं और फिर रिजल्ट्स के टाइम जाते हैं। सो सम हाउ वी हैव टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन। द ज्यूरी, द होल पैनल इज ऑफ द ओपिनियन के टीचर्स हैं चेंज मेकर्स। टीचर्स वो तब्दीली ला सकते हैं, टीचर्स जो स्कूल्स को भी बदल सकते हैं। बच्चे तो उनका पार्ट एंड पार्सल ही है, लेकिन वो टीचर है जो यहाँ पर आज मौजूद है, जो एजुकेशन एक्सपो या और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में पार्टिसिपेट करता है। वो टीचर है जो एक बच्चे में एक फ्यूचर सिटीजन देखता है, वो बच्चे में अपनी दुनिया और अपनी आखिरत देखता है। वो टीचर है जो समाज के अंदर हकीकी तब्दीली ला सकता है और हम सब यहाँ पर पैनल से मुत्तफिक हैं। I thank everybody present here. माशाल्लाह you have been a great audience today. देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं आपके लिए, तो अपने लिए खुद के लिए भी आप ताली बजा लें माशाल्लाह। I thank the panelist. मैं
डॉक्टर साहब से, डॉक्टर तनवीर साहब का शुक्रगुजार हूँ, मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब का शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब ने वक्त निकाला, इतनी दूर से आए हैं, इदरिस खमीसा साहब अफ्रीका से आए हैं. सो आई थैंक एवरी वन ऑफ यू. मे अल्लाह ब्लेस यू मैनी फोल्ड्स इन दिस वर्ल्ड एंड इन द हियर आफ्टर. जज़ाकल्लाहु खैर. बारकल्लाहु फीकुम. विद दिस वी कंक्लूड टुडेज सेशन. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. सर इस्तकबाल करना चाह रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और डॉक्टर अब्दुल क़दीर सर का ये इस्तकबाल करना चाह रहे हैं. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. हाज़रीन किराम, यकीनन सबसे पहले तो औरंगाबाद तालीमी व किताब मेला 2024 के तमाम मुंतज़मीन को बहुत बहुत मुबारकबाद. बहुत ही खूब सेमिनार रहा, बहुत ही खूब महफिल रही. इस इनेकाद पर हम सरदार शिक्षण संस्था इल्म सरदार उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज देवपुर धूलिया प्रिंसिपल और जुमला स्टाफ आप तमाम को मुबारकबाद पेश करते हैं. इसके इख्तिताम पर तो हम ये कह सकते हैं कि जितने ख़यालात तमाम मुकर्रम और मोहतरम के आए हैं कि अब जिसके जी में आए ले ले रोशनी, अब जिसके जी में आए ले ले रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे शाम कर दिया. बहुत खूब ख़यालात रहे. मोहतरम अब्दुल क़दीर साहब शाहीन एकेडमी के ताल्लुक़ से आपकी खिदमत यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. सरदार शिक्षण संस्था के इल्म सरदार उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरम अंसारी मुर्तज़ा सर, वाइस प्रिंसिपल मोहतरम मंजूर खान सर, अंसारी मंजूर सर, मोहतरम अयाज इनामदार सर, मोहतरम अब्दुल क़दीर साहब, बस चंद मिसरे आपके खिदमत में. यकीनन इन तमाम खिदमात का बदल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने वाला है. हालात के लिहाज से यकीनन किसी सुखनवर ने किसके लिए कहा है, मगर मुझे लगता है कि ये ऐसी शख्सियत मोहतरम के लिए कहा है कि सितमगर की आँखों को नम कर रहे हैं. जो मुश्किल था वो काम हम कर रहे हैं. सितम करने वाले सितम कर रहे हैं. हम अहले करम हैं, करम कर रहे हैं. बहुत खूब मोहतरम.